اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، میں ہوں انسا یاسمین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انسا ملک ناولز۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی ناول سٹارٹ ہے اور آج ہم پڑھیں گے اس کی قسط نمبر 7۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور قسط پسند آئے تو اسے لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط۔ مجھ سے زیادہ بھی کوئی بے وقوف ہوگا؟ کیا ضرورت تھی اس وقت آنے کی؟ لیکن نہیں، مجھے تو ایڈونچر کرنا تھا۔ سو ناؤ انجوائے زارا میڈم۔ وہ خود سے بڑبڑاتی تیز قدموں سے چلتے واپس جا رہی تھی۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے وہ کسی کو بھی بتائے بغیر گاؤں دیکھنے کے لیے اکیلے ہی نکل پڑی تھی اور اب ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ لوگ وانیا کے آبائی گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ شام کے وقت نہر کا منظر دیکھنے کے چکر میں نکلی تھی جو کہ گھر سے کافی دور تھی۔ اب اسے صحیح سلامت گھر پہنچنا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب تک اور کسی کو اس کے گھر میں نہ ہونے کا علم ہو یا نہ ہو، وانیا کو معلوم ہو گیا ہوگا اور وہ پریشان بھی ہوگی۔ او ہیلو میڈم۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم خود کو کوسنے میں مصروف تھی کہ ایک لڑکے کی لڑکھڑاتی آواز میں اسے پکارا۔ جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی مزید تیزی سے چلنے لگی۔ میڈم رکے تو، اب کی بار کسی دوسرے لڑکے کی آواز تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ 4 لڑکے تھے جو شاید نشے میں دھت اپنے ہوش میں نہیں تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر اسلام آباد میں خود کو لیڈی ڈان سمجھنے والی زہرا کے ٹھنڈ میں بھی پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ اپنے قدموں میں مزید روانی لاتی اب تقریباً بھاگ رہی تھی۔ ہے اسٹاپ! وہ تیزی سے مزید آگے بڑھتی کہ ایک لڑکا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا، مگر وہ اس کے راستہ روکنے سے زیادہ اس کے وہاں اس حالت میں ہونے پر شوق تھی۔ یہ آنکھیں، ان آنکھوں کی کشش ہی تو اسے اس کی جانب کھینچا تھا۔ وہ انہیں کیسے بھول سکتی تھی؟ مگر اس کا باقی کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا مکمل نقاب میں۔ اصیل! اس کے لبوں سے ٹکڑوں میں ادا ہوا، جبکہ اس کے منہ سے یہ نام سن کر مقابل کا قہقہ اس سنسان گلی میں گونجا، گویا وہ اس پہچان پر خوش ہوا تھا۔ تم یہاں ہٹو سامنے سے! اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کے دیکھا۔ باقی لڑکے بھی اس کے قریب پہنچ چکے تھے، پھر ہمت کرتے اسے سامنے سے ہٹانا چاہا۔ ہاں، ابھی نہیں۔ وہ وہی ہاتھ سے زارا نے اسے ایک طرف کرنا چاہا پکڑ کر قدرے سرگوشانہ انداز میں بولا، اصیل تم ہوش میں نہیں ہو، لیو می۔ وہ اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی جدوجہد کرتے ہوئے بولی، آواز میں نمی گھل آئی تھی، اتنی بھی کیا جلدی ہے میڈم؟ وہ تینوں لڑکے بھی ان کے قریب پہنچ گئے۔ انہی میں ایک لڑکھڑاتی آواز میں بولا، لیٹس ہیو فن۔ اس لڑکے کی بات سن کر وہ گہرا مسکرایا اور پھر بولا، جبکہ زارا اب اور تیزی سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی جس سے اس کی کلائی میں جلن محسوس ہونے لگی تھی، مگر ابھی اسے اس سب کی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی تو وہ صرف اپنی عزت ان بھیڑیوں سے بچانا چاہتی تھی۔ اصیل پلیز لیو می۔ آنسو اب اس کے رخسار پہ کھونے لگے تھے۔ علیم! وہ اس کے کان کے پاس آ کر انتہائی آہستہ آواز میں بولا۔ اسی لمحے زارا نے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت اتنی شدت سے گاڑے کہ وہ کرا اٹھا۔ اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کرواتے ہی وہ بنا دیکھے بھاگنے لگی۔ اتنے اندھیرے میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اور اب دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی جو شام کے وقت گھر سے نکلی تھی، جبکہ وانیا اسے منع بھی کر چکی تھی، لیکن اس کی بات نہ مانتے ہوئے وہ خود کو آج بھی مصیبت میں ڈال چکی تھی۔ آنسو تیزی سے اس کے گال پر بہہ رہے تھے اور اب تو آنکھیں دھندلانے لگی تھی کہ وہ تیزی سے بھاگتے ایک دم لڑکھڑائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ زمیں بوس ہوتی 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ او میڈم، یہ کون سا ٹائم ہے میراتھن کا؟ وہ زہرا کے تیز بھاگنے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ ایک پل کے لیے تو وہ اسے وہاں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں میں رہ رہی ہے، مگر رات کے اس وقت اس کا وہاں ہونا، سرگم کا دل چاہ اپنا ماتھا پیٹ لے اس لڑکی کی عقل مندی پر۔ ایکسکیوز می! وہ اپنے دونوں بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے ناسمجھی سے بولے، رات کے اس وقت آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس کے پیچھے آنے والے لڑکوں کو دیکھ چکا تھا، مگر پھر بھی سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ لڑکے بھی اسے وہاں دیکھ کر الٹے قدموں واپس جا چکے تھے۔ ابھی آپ ہی نے تو کہا میراتھن، اسی کی تیاری کر رہی ہوں۔ ایک پل کے لیے زہرا کو وہ جانا پہچانا لگا، اور اگلے ہی پل وہ پہچان چکی تھی کہ یہ وہی تھا جو اسلام آباد میں اسے ٹکرایا تھا، اور اس نے اپنی جیکٹ بھی اسے دی تھی۔ اسی لیے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولے، میڈم یہ آپ کا اسلام آباد نہیں جہاں رات کو کسی بھی وقت منہ اٹھایا اور باہر چل دیے، یہ خان پور ہے۔
यहाँ रात को जंगली जानवर भी होते हैं और इंसानी भेष में दरिंदे भी। वो संजीदगी से उसे बताने लगा। और मैं इन दोनों से अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। वो भी कहाँ मानने वाली थी कि वो आज एक पल के लिए ही सही मगर उन लड़कों से डर गई थी, इसीलिए इतराते हुए बोली, जी देखा मैंने, आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी। वो एक बार फिर उसके भागने पर चोट करते हुए तंजिया अंदाज में बोला, देखिए आप जो कोई भी हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं ज़हरा हैदर सिद्दीकी हूँ, राइट। उसने ज़हरा का जुमला मुकम्मल किया तो ज़हरा हुनक सी बनी उसे देखने लगी। सो मिस ज़हरा, ये एक गांव है। यहाँ मगरिब के बाद इंसान तो क्या, कोई जानवर भी आपको अपने घर से बाहर नजर नहीं आएगा। तो जब तक यहाँ है कोशिश करें सारे एडवेंचर्स मगरिब से पहले ही खत्म कर दिया करें। वो संजीदगी से उसे वार्न करने के अंदाज में कहने लगा, यू कांट माउंट मी, यू आर नॉट माई फादर। उसने सुना था खूबसूरत लड़कियों की अक्ल घुटनों में होती है, और आज देख भी लिया, लेकिन उसे लग रहा था कि इस लड़की की अक्ल घुटनों में भी नहीं, शायद टखनों में थी। जानता हूँ कि मैं आपका बाप नहीं हूँ, बट आई कैन बाउंड यू। उसने आंखें सख्ती से बंद करके खोलकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। पहली बात कदरे नरमी से कहकर वो 2 कदम उठाता उसके नजदीक आकर उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में बोला, और आज के बाद अगर मुझे मगरिब के बाद बाएं नजर आई तो आई प्रॉमिस मिस ज़ारा, आइंदा कभी सूरज की शक्ल भी नहीं देख पाओगी। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो उसे इतनी सख्ती से क्यों पेश आ रहा था। उसे नरमी से भी तो समझा सकता था, लेकिन नहीं, शायद वो लड़की नरमी से समझने वालों में से नहीं थी। उसने खुद को मुतमिन किया। समझ गई। वो उसे स्टिल देखकर बोला, जी। जगराम की जरा सी सख्ती के सामने उसका एटीट्यूड हवा हो गया। गुड, चलिए अब मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो मुस्कुराहट दबाते हुए नरमी से बोला। वो दोबारा शरीफ सा जरगाम बन चुका था, तो वो भी शराफत से उसके साथ चलने लगी। वैसे मेरी जैकेट कब लौटा रही हैं आप? कुछ देर खामोशी से चलने के बाद वो दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले नजरें सामने सुनसान गली पर जमाए बोला, जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो कर दूंगी। वो उसके अचानक पूछने पर गड़बड़ा सी गई। मुखर, वो दिल ही दिल में उसे कोसने लगी। कुछ कहा क्या तुमने? वो एक बार फिर आपसे तुम पर आ गया। नहीं। वो एकदम बौखलाते हुए उससे 2 कदम आगे को बढ़ी। अच्छा, मुझे लगा तुमने मुझे भुक्खड़ बोला। वो मुस्कुराहट दुबाए मुस्नुही संजीदगी से बोला, जबकि उसकी बात सुनकर ज़हरा के चेहरे पर आए तासुरात पर उसका कहकर रोकना महाल हो गया, तो उसने मुंह दूसरी जानिब फेर लिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो जल्दी से कहती तेज कदम उठाती आगे बढ़ी, तो वो भी उसे मजीद तंग करने का इरादा छोड़कर उसके पीछे चलने लगा। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी। वानिया को बाहर बैठा देख ज़ारा उसके करीब आते हुए बोली। वहां से उस इलाके का मंजर काफी अच्छा नजर आता, इसीलिए वो अक्सर वहां बैठ जाती। वानिया, उसे ख्यालों में गुम देखकर ज़ारा ने उसे दोबारा पुकारा। तुम कब आई? ज़ारा के पुकारने पर उसने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा। जब तुम शीश महल बनाने में मसरूफ थी, वो मजाहिया अंदाज में बोली। बहुत अच्छी लगती हो। ज़ारा उसे मुस्कुराता देख बोली। क्या? वानिया की मुस्कुराहट कुछ गहरी हुई और माथे पर हैरत के पल भी आए। मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छी लगती हो। ज़ारा ने अपनी बात दोहराई। ओह अच्छा, क्या बात है, आज तुम्हारा मूड काफी अच्छा है। वानिया ने उसकी मुतवज्जो होते दिल ही दिल में उसकी दाहिनी मुस्कुराहट की दुआ मांगी। मेरा मूड तो हमेशा ही अच्छा होता है। वो अब भी उसके चेहरे पर निगाहें जमाए हुए थे। शायद वो उसकी परेशानी उसके चेहरे से पढ़ना चाहती थी। कुछ कहना चाहती हो? उसके चेहरे पर उलझन देखकर वानिया ने खुद ही पूछ लिया। हाँ, एक बात पूछनी थी। ज़ारा ने एक नजर उसे देखा, फिर सामने नजर आते बड़े दरख्तों पर निगाहें जमाई बोली। तो पूछो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या बात है जो ज़ारा उसे कहने में हिचकिचा रही है। सच बताओ कि ज़ारा के पूछने पर वानिया ने हैरान कुन अंदाज में उसे देखा कि भला वो ज़ारा से झूठ क्यों कहेगी। ऑफ कोर्स, अब पूछ भी लो। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोली, ताकि ज़ारा को जो भी पूछना है वो बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ सके। वो लड़की जो हमें नहर के पास मिली थी, वो कौन थी? ज़ारा ने अपना सवाल पूछने के बाद वानिया के चेहरे को बगौर देखा था, मगर वो पुरसुकून थी, गोया पहले ही इस सवाल के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। आलिया यहाँ की ही रहने वाली है। पहले जब मैं आई थी तो थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। क्यों? जवाब के साथ ही सवाल भी किया गया, क्योंकि वो जानती थी कि ज़ारा क्या जानना चाहती है, मगर फिर भी उसने आम सा जवाब दिया। और खान साहब कौन है? क्या तुम उन्हें जानती हो? वानिया के क्यों को इग्नोर करते उसने दूसरा सवाल पूछा। हाँ,
यहाँ के सभी लोग उन्हें जानते हैं और मैं यहाँ के लोगों का नहीं, तुम्हारा पूछ रही हूँ। क्या तुम उन्हें पर्सनली जानती हो? वानिया की बात दरमियान में ही काटते उसने अपना सवाल दोहराया। हाँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। क्या तुम सील को भी जानती हो? सारा ने किसी खदशे के तहत पूछा था, लेकिन वो चाहती थी कि जो वो सोच रही है या जो उसने कल रात देखा था वो सच ना हो। ये कैसा सवाल है ज़ारा? तुमने खुद ही तो मिलवाया था ना? ज़ारा के सवाल पर एक लम्हे को वानिया लाजवाब हो गई, मगर फिर जल्दी ही एक गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल करते बोली। मेरे मिलवाने से पहले? उसने अपने सवाल की वजाहत की। नहीं, मैं कैसे जान, वो भी तो इसी गांव का है ना, तो फिर क्यों नहीं? ज़ारा ने एक और सवाल किया। वो अब भी उससे नहीं सामने लगे बरगद के दरख्तों को देख रही थी। तुम जानती हो मेरा गांव में ज्यादा टाइम नहीं गुजरा। वो सीधा जवाब देने की बजाय बात को घुमाने लगी। 2 साल पहले क्या हुआ था? यही वो सवाल था जिससे वो बचना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ज़ारा उससे कभी भी उस बारे में सवाल करे, लेकिन एक तरफ वो ये भी जानती थी कि एक ना एक दिन वो ये सवाल जरूर पूछेगी, लेकिन देने के लिए उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्या मतलब क्या हुआ था? हमने यूनी में एडमिशन लिया था, तुम अंकल आंटी के साथ दुबई गई थी और हाँ, भैया को एक अच्छी डील मिली थी, तुम्हें याद है? हमने उन्हें पूरा हफ्ता ट्रीट के नाम पर। वानिया, वो हर तरह से खुद को नॉर्मल जाहिर करती बजाय चहकते हुए बता रही थी कि ज़हरा की आवाज़ पर खामोश हूँ। तुम जानती हो मैं किस बारे में पूछ रही हूँ? उसका अंदाज तनबीह करता था। तुम किस बारे में पूछ रही हो? मैं नहीं जानती। अब तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कल रात कहाँ गई थी और किसके साथ वापस आई? वानिया ने उसे मौजू से हटाना चाहा। नहर की तरफ गई थी। वो कुछ पलों के लिए उसके चेहरे पर नजरें जमाए रही, फिर गहरी सांस खारिज करते गोया हार मानते हुए बोली। मैंने तुम्हें मना किया था ना, वहां रात में जंगली जानवर के अलावा आवारा कुत्ते भी होते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, कोई कुछ कर देता तो? ज़हरा की बात सुनकर वो हवास बाख्ता से अंदाज में बोली और साथ ही ज़हरा को हाथ लगाकर देखा कि गोया वो ठीक थी। रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। तुमने सही कहा, पर जंगली जानवर तो नहीं, अलबत्ता आवारा कुत्ते जरूर थे। कल रात का मंजर उसकी नजरों के सामने घूमने लगा तो वो अब भी कपकपा कर रह गई कि अगर वो नहीं आता तो न जाने उसके साथ वो लोग क्या करते। ज़ारा, तुम ठीक हो? ज़ारा की आवाज़ सुनकर वानिया ने फिक्रमंदाना अंदाज में पूछा। हाँ, वही छोड़ने आया था, वो जैकेट वाला। वो उसे उस दिन की सारी कहानी बता चुकी थी और वानिया एक दो बार उसे जरगाम की जैकेट को लेकर तंग भी कर चुकी थी, इसीलिए उसने जैकेट का जिक्र किया था। क्या? वो हैरत से गोया चीखी। आहिस्ता, क्या हो गया? ज़ाहिरा ने उसकी आवाज़ और हैरत देखते हुए सवालिया अंदाज में कहा। नाम पूछा? अब कि वो दिलचस्पी से मुकम्मल तवज्जो के साथ ज़ारा की जानिब देख रही थी। नहीं, ज़ारा ने नॉर्मल अंदाज में कहा, जबकि वो खुद भी उसका नाम जानना चाहती थी। क्या? उसने 2 बार तुम्हारी मदद की और तुमने उससे नाम तक नहीं पूछा? वानिया हैरत और सदमे की सी कैफियत में उससे बोल रही थी। अगली बार मिलेगा तो पूछ लूंगी, ज़ारा जल्दी से बोली, जबकि बोलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल चुकी है। मेरा मतलब था कि अगर अगर वो दोबारा मिला तो नाम पूछ लूंगी। वो अपनी जल्दबाजी पर खुद को कोसते हुए दोबारा बोली, जबकि अपनी इस जल्दबाजी पर वो खुद भी हैरान थी कि वो क्यों उससे दोबारा मिलना चाहती है। समझ गई, वानिया मुस्कुराहट दबाते हुए बोली। बाय द वे, वो अगर इसी गांव का है तो हम पता लगवा सकते हैं उसका नाम। वानिया एक आंख दबाते हुए शरारत से बोली और साथ ही अंदर की जानिब भागी।